Okay, friend, myself Praveen Kumar, Assistant Professor Physics, Pandit NRS Government College Rohtak. Today we will discuss the topic of AC breezes. This topic is included in BSc First Sem Honors Physics syllabus, electricity paper. We are familiar with the Wheatstone bridge, and that Wheatstone bridge principle, which is used to determine the resistance in terms of other resistances, is also applicable to AC network, but with the modification that we have to consider impedance instead of resistance, because in AC we use a capacitor, we use inductor, and a capacitor offers an resistance C omega to the flow of electricity through it, and it is called capacitive reactance. Similarly, inductance offered an resistance L omega, and it is called inductive reactance. And total resistance offered by the circuit is called impedance. So in AC bridges we use the same thing, and let me draw a block diagram of an AC resistance. It is just like Wheatstone bridge. Suppose this is AB branch, and in this branch let there is Z1 impedance, and other is BC branch, let here it is Z2 impedance, and in this branch let us consider this is Z3 impedance, and this is point D, and suppose in this branch it is Z4. Here between B and D we use headphone. Null point is determined with the help of a headphone. Headphone H indicates minimum sound at balance, and points B and D have the same potential. Because it is an AC circuit, so AC circuit is represented by this sign line, and this is AC. And at balanced point condition will be same, ratio of Z1 by Z2 will be equal to Z3 by Z4. Okay, so this is block diagram of an AC bridges. Everything is same. Instead of galvanometer we use here headphone, and balance point is obtained when we hear minimum sound. So we consider that balance point is reached. What are its uses? So it has many uses, because just like Wheatstone bridge in which we found resistance, here we can find inductance and capacitance. So depending upon the use, there are many different types of bridges. Let us first consider AC bridges for the measurement of inductance. For the measurement of inductances. Okay. So in this case it is called, first bridge which we will consider is given by Maxwell. So upon that name it is called Maxwell's bridge. It is called Maxwell bridge. Okay. Let us see diagram of the Maxwell bridge. Let me first plot the diagram of the Maxwell bridge. You will see what is the difference here. This is point A, this is point B,
एंड दिस सामने इसके आप पॉइंट सी एंड इसके सामने ऐसे पॉइंट टी ऐसे लिख लें पहले. एंड देन सी बिटवीन ए एंड बी देयर इज ओनली रेजिस्टेंस R1. ओके. In B and C there is resistance R2, and in parallel to it there is a capacitance value C, and it is a variable capacitance. In between C and D there is only resistance, and it is called R4. And between A and C there is an inductance L, and again there is an resistance R3, and it is variable. Between B and D, you know, we connect headphone. This is headphone, and this is the circuit diagram of Maxwell bridge. Okay, this is the circuit diagram. Clear? ठीक है. दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ मैक्सवेल ब्रिज. नाउ वी विल सी कि क्या कंडीशंस है. अब हम इनको इम्पीडेंस कहेंगे. तो फर्स्ट जो इम्पीडेंस है वो हमारा Z1, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B. हियर वी सी ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन दिस ब्रांच, सो Z1 इज इक्वल टू R1. नाउ इन Z2 को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल में कनेक्ट है. तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको यदि हम Z2 मानना है तो टोटल का जो रेसिप्रोकल होता है पैरेलल में वो इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, 1/R2 प्लस. अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो है ओमेगा सी, बट यहाँ पे 1/ओमेगा सी. सी जो ऑफर करता है, सी जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो 1/ओमेगा सी. इसको हम XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम कम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस यूज़ करेंगे तो J भी लगा देंगे. J इस कम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस के लिए इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, तो 1 + j⍵c. ओके. और ये ऊपर चला जाएगा तो 1/Z2 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस j⍵c. Now we will see Z3. In Z3 there are inductance and there is resistance, and both are in parallel series. So Z3 will become equal to resistance offered by R3 and resistance offered by L, that is L omega, but will be put J also, and Z4 will only given by R4. तो Z4 is R4. तो ये हमारा हो गया, हमने निकाल लिया. वेरी सिंपल. बैलेंस हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, बैलेंस की कंडीशंस हमें दिख रही है. बैलेंस इज ऑब्टेंड बाय वेरिंग कैपेसिटेंस. पहले हम इस कैपेसिटेंस को वेरी करेंगे, इसलिए हमने वेरिएबल लिया है. और जो इंडक्टेंस है वो मेजर्ड हो जाएगा हमारा R1 और R2 की टर्म में और कैपेसिटेंस की टर्म में. तो बैलेंस पॉइंट की कंडीशंस क्या है हमारी, वही Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4. तो ये कंडीशन अब हम यहाँ रखेंगे. Z1 इज इक्वल टू R1. Z1/Z2, तो Z2 हमने पहले निकाला हुआ है, निकाला हुआ है ना, ये 1/Z2. तो 1/Z2 हमारा किसके इक्वल है, 1/R2 प्लस j⍵c. तो 1/R2 प्लस j⍵c. दिस इज Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3. Z3 है हमारा R3 प्लस jL⍵/R4, और R4 क्या है, Z4 क्या है, R4. तो बैलेंस हमारी कंडीशन हो गई है. दिस इज अवर बैलेंसिंग कंडीशंस. अब यहाँ से हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस. सो इक्वेटिंग, वी विल राइट हेयर इक्वेटिंग रियल and
imaginary parts on the two sides of this equation। ठीक है, तो इसको देखें। अब हम रियल पार्ट है जिसमें j इंक्लूड नहीं है, इसको हम ऐसे खोल भी सकते हैं। इसको हम चलो इसको हम ओपन करें तो इट विल बिकम्स r1/r2 प्लस r1 j ओमेगा c इज इक्वल टू r3/r4 प्लस j l ओमेगा बाय r4। ओके, तो इक्वेट कर दें तो क्या होगा। इधर क्या है, देखो इधर है हमारा r1/r2 और इधर क्या है रियल पार्ट r3/r4। सो r1/r2 विल बिकम्स इक्वल टू r3/r4। एंड सेकंड क्या है, इमेजिनरी पार्ट r1 j ओमेगा c इज इक्वल टू j l ओमेगा बाय r4। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल करेंगे, j से j कैंसिल कर देंगे तो r1 ओमेगा c इज इक्वल टू l ओमेगा बाय r4। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल अगेन एंड वी वांट टू फाइंड r4, तो r4 को हम इधर ले जाएं। ठीक है, सॉरी, हमें r4 नहीं फाइंड करना, हमें तो l फाइंड करना है। तो l फाइंड करेंगे तो l क्या हो जाएगा, r4 को उधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा c r1 r4। तो ये दो हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 आर बैलेंस कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेंगे हम c वेरी करके। पहले हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें हम r3 वेरीफाई करेंगे, r3 को हम वेरिएबल करेंगे और देखेंगे कि कब हमारी मिनिमम साउंड आ रही है, उस r3 को हम नोट कर लेंगे। फिर हम c को वेरी करेंगे और अगेन देखेंगे कि फर्दर रिड्यूस हो जाएगी हेडफोन में साउंड, फर्दर मिनिमम हो जाएगी। तो उस प्लेस पे हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। जिस पे बिल्कुल मिनिमम साउंड आ जाए उस c की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। r1 r4 ऑलरेडी फिक्स्ड हैं तो हम l फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगेन मैक्सवेल ब्रिज, अगेन मैं फटाफट समझाऊं तो यही है, ये मैक्सवेल ब्रिज का डायग्राम है। इसमें r1 और r4 तो सेम रखे हैं, r2 भी है, चारों में रेजिस्टेंस है, नोट करो r1 r2 r3 r4। r3 वेरिएबल है, r2 के साथ एक कैपेसिटेंस जोड़ा है हमने पैरेलल में, और इसके अपोजिट साइड में हमने एक इंडक्टेंस जोड़ा है सीरीज़ में, पैरेलल का सीरीज़। कंडीशंस जो होती है इम्पीडेंस की, Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4, तो इंडिविजुअल हमने कैलकुलेट कर लिए। Z1 r1 यहाँ दोनों पैरेलल में है, तो टोटल का 1/Z2 इज़ 1/r2 j ओमेगा c। Z3 जो है हमारा सीरीज़ में है दोनों, तो ये सीरीज़ में, और Z4 r4। और ये हमने करके फिर हमने फाइंड कर लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड मैक्सवेल ब्रिज। नाउ देयर इज़ एन अनदर ब्रिज दैट इज़ कॉल्ड ओवन ब्रिज। By this method also we can find the inductance. Let I make the diagram of this method. Here R1 and there is capacitance. Then there is again a capacitor A, B और C के बीच में. In A and D there is L and there is resistance. This is headphone. And there is again a resistance R4. Suppose this is R1, R2 नहीं है, इसको हम R4 नाम देंगे। This is R3, this is capacitor of capacitance C1, this is capacitor of capacitance C2, this is inductor of inductance L2. Let this is variable and this is variable. Here दो resistance R1 and R3 are variable. This is the diagram of oven bridge. Now again the same method we will repeat. Same method is what we will do. We will find Z1, Z2, Z3 and Z4. First let us see what is Z1. Series combination R1 सीरीज में सिंपल ऐड हो जाते हैं j ओमेगा C1. What is Z2? Z2 इज सिंपल C2 का रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है, कितना रेजिस्टेंस लगाएगा, ये लगाएगा Z ओमेगा C2. व्हाट इज Z3?
Z3 is R3 plus J L omega. And what is Z4? Z4 is R4. ओके, तो जैसे हमने मैक्सवेल ब्रिज में किया था, ऑन सेम पैटर्न हमने ओवन ब्रिज में ये हमने Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यू वी हैव फाउंड। अब हम आगे क्या करेंगे, इम्पीडेंस की जो कंडीशंस है उसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो Z1, ये देखो ये विजिबल है, Z1 क्या है, R1 1 प्लस J ओमेगा C1 बाय Z2। Z2 क्या है, 1 बाय J ओमेगा C2। ओके, Z3 क्या है, Z3 है R3 प्लस J ओमेगा L। और Z4 क्या है, R4 रख दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा, नेचुरल है। तो अगले स्टेप में R1 प्लस 1 बाय J ओमेगा C1, और ये आपका ऊपर चला जाएगा J ओमेगा C2, और ये हो जाएगा R3 बाई R4 प्लस JL ओमेगा R4। अगेन इसको हम फिर खोल लें तो ये हो जाएगा हमारा R1 J ओमेगा C2 प्लस J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल, C2 बाई C1 इज इक्वल टू R3 बाई R4 प्लस JL ओमेगा बाई R4। Now we will equate the real and imaginary parts on both sides. Here real part is this, here it is this. So first condition we will get C2 by C1 is equal to R3 by R4. This is first condition. And second condition is this, R1 ओमेगा C2 इज इक्वल टू L ओमेगा बाई R4। ओमेगा से हम ओमेगा कैंसिल कर देंगे तो L आ जाएगा हमारा C2 R1 R4। ये हमारा आ गया। तो प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, पहले हम इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। इसमें आप देखेंगे C2 फिक्स्ड है, C1 फिक्स्ड है, R4 फिक्स्ड, R3 वेरिएबल है। हम R3 को वेरी करेंगे और देखेंगे कि साउंड हमारी मिनिमम आ जाए। फिर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे R1 को हम फिर वेरी करेंगे, मिनिमम करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी साउंड फर्दर रिड्यूस हो जाए तो उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे और फिर हम फार्मूले में पुट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो दिस इज कॉल्ड ओवन ब्रिज। नाउ वी हैव सीन टू मेथड्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बाय AC ब्रिजेस मेथड। नाउ let us discuss one method for finding capacitance AC bridges for the measurement of capacitance। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ब्रिज है उसको हम कहते हैं डी सोटी ब्रिज, SAUTY, डी सोटीज AC bridge। Okay, this D SOTY AC bridge इन साइंटिस्ट के नाम पे है। तो we will see कि what is the difference comes out here in D SOTY AC bridges compared to Maxwell bridge and Owen bridge. Fundamental principle is same, but diagram is different. In first branch we will just take a capacitor of capacitance C1. In second branch we will just take resistance R2. In third we see C2, and here we take R4. Both these are variable resistance। Okay, here again ये D SOTY, ये हमने हेडफोन, एंड दिस इज AC। ओके, नाम दे देते हैं हम ABCD। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज सेम। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ एन अननोन कैपेसिटर। सपोज हमारा C2 अननोन है, इसको हमने फाइंड करना। जनरली हम अननोन को हम इस ब्रांच में रखते हैं, ये आपको भी पता चल गया होगा। तो ये अननोन कैपेसिटर हमने फाइंड करना है C2।
in terms of capacitance of a standard capacitor, नॉन कैपेसिटर C2 को C1 की टर्म्स में हम फाइंड कर देंगे। हमें R2 और R4 भी पता है, वही जो फार्मूला होता है यहाँ भी वही रहेगा, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z3 बाई Z4। तो डायरेक्ट वी कैन पुट हेयर व्हाट इज Z1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस and this capacitive reactance of this, and that is equal to j omega C1 divided by Z2. In Z2 you see there is only R2 equal to Z3 में again there is capacitor j omega C2 and here R4। तो ये ऊपर चला जाएगा, it will becomes like this, R2 j omega C1 is equal to R4। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजनरी ही पार्ट है, जे ओमेगा से जो ओमेगा कैंसिल, और हमने इसको रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा C1 बाई R2 इज इक्वल टू C2 बाई R4। ये उससे भी आसान है। C2 क्या हो जाएगा, हमने जो C2 फाइंड करना है ये हो जाएगा C1 और R4 बाई R2। ठीक है, R4 C2 फाइंड करेंगे, ठीक है, C1 बाई R2, C2 बाई R4, C2 will becomes equal to R4 by R2 C1। तो by this method you can find the capacitance। ओके, हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आई थिंक अगेन लेट अस सी C1, this is C1 that is equal to 1 by j omega C1 by R2 equal to again C Z3 is 1 by j omega C2 by R2 ऊपर j ओमेगा C1, R4 j ओमेगा से जो ओमेगा कर दिया। इसको हम उल्टा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ, तो C1 बाई R2 इज इक्वल टू C2 बाई R4। तो C2 विल बिकम्स इक्वल टू C1 इंटू R4 बाई R2। तो हम इनको वेरी करेंगे, एक ही कंडीशंस हैं, यहाँ दो कंडीशंस नहीं हैं, और इससे हम फाइंड कर सकते हैं। इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू कंपेयर C1 बाई C2 will be equal to R2 by R4, तो इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों कैपेसिटेंस को। दिस इज कॉल्ड डी सोटी ब्रिज। ओके, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 ब्रिजेस, AC ब्रिजेस, these are called AC ब्रिजेस, just based on Wheatstone bridge principle, and it is also applicable in AC circuit. One bridge is Maxwell bridge. This is Maxwell bridge, and this is Oman bridge. This is first, you can see this is Maxwell bridge। ओके, ये फाइंड किया, फिर हमने ये ओवन ब्रिज फाइंड किया, और उसके बाद ये डी सोटी ब्रिज फाइंड किया। ओके, एंड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।